So hi guys, we'll be starting with the UN system, the United Nations system. It is a very important concept which we need to learn now. These are the previous year questions, and then the first thing which we'll study about is the United Nations General Assembly. I feel that GA and SC are one of the most important bodies of the United Nations, right? So I'd rather go on to the historical evolution as well. Right? In the historical evolutions, we need to study about a few things. Firstly, if we want to learn about the historical evolution of United Nations, we have to read about the League of Nations. League of Nations. It was 1919 concept. Right? States should partially surrender the sovereign right to go to war, take all and the state should take necessary step to settle the disputes. Right? Settlement of war, settle war, plus settlement of disputes, settled disputes. Right. Second part, there was the St. James Declaration of St. James Place. It reiterated the need for global peace. Right. St. James Declaration, 1941, for global peace. Thirdly, we have to learn about the Atlantic Charter as well. Atlantic Charter. Certain common principles have to be followed by every country in their municipal sphere. Common principles. Common principles which are needed to be followed. It is again a 1941 law. Right. Then we have to read about the UN Declaration. The UN Declaration of UN Declaration of 1942. Right. Then there was the Dumbarton Oaks Conference. Dumbarton Oaks Conference of 1944, जिसमें यूएन का स्ट्रक्चर प्लस ऑर्गन्स के बारे में कॉन्टेम्पलेशन हुई थी और डिसाइड भी हुआ था कि क्या क्या होंगे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन. देन वी हैव दी टाल्टा कॉन्फ्रेंस, 6th टाल्टा कॉन्फ्रेंस. इसमें अप्रूवल मिला था कि क्या क्या चार्टर में होना चाहिए या किस तरीके से ऑर्गन्स होने चाहिए. अप्रूवल हुआ था. देन इवेंचुअली द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, which adopted the UN Charter and Statute of ICJ. UN Charter plus ICJ Statute. ठीक है. सो ये इम्पोर्टेंट था समझना, इसलिए मैंने समझा दिया. इसके बाद हम आएंगे जो मेजर बॉडीज़ हैं यूएन के अंदर. फर्स्ट इज़ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. Under Article 7, it is written that it is one of the 6 principal organs of the UN. What is the powers of the General Assembly? Firstly, it is to oversee the budget of UN. बजट देखना है, नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स को अडॉप्ट करना है. देखिए यूएनएससी में 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट. परमानेंट तो मतलब हमेशा ही रहेंगे, जिसमें चाइना, फ्रांस, यूएस हैं और भी सारे जो मेंबर्स हैं. नॉन परमानेंट ना रोटेशन बेसिस पे चलते हैं. एक समय पे इंडिया भी था. देन रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूएन, मेक रिकमेंडेशंस इन द फॉर्म ऑफ जीए रेजोल्यूशंस एज वेल. राइट.
कॉम्पोजिशन क्या है? पार्लियामेंट्री बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग of representatives from all member countries, which is written under Article 9 subclause 1. Then we have the voting procedure. Procedural matters are done by simple majority. Important matters like recommendations on peace and security, admission of new members, etc. are done by 2/3 of majority. The GA resolutions are not binding on members. It can make recommendations only on any matter विद इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन एक्सेप्ट मैटर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अंडर SC की मतलब SC में जो है लिखा हुआ, उसके अलावा सब चीज़ों पे GA रिकमेंडेशंस पास कर सकती है. दैट इज़ द होल पॉइंट इन अ क्रक्स, राइट. पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं? फर्स्टली देयर आर सर्टेन डिलिबरेटिव फंक्शंस अंडर आर्टिकल 10. GA क्या क्या करेगा? क्वेश्चंस डिस्कस कर सकता है इन रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी except those being considered by UNSC. It can also make recommendations for said purpose. It can also make recommendations on matters affecting the functions of any organ of the UN. Example, UN Millennium Declaration of 2005 का जो वर्ल्ड समिट ऑफ आउटकम डॉक्यूमेंट था, उसमें भी इसके बारे में बात करी थी. ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि अगर आप एग्जाम्पल्स आंसर्स में लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, दैट इज़ द होल पॉइंट. Then there are certain legislative functions as well. GA resolutions are not binding. However, a resolution can become declaratory of IL if adopted unanimously or with overwhelming majority and repeated in subsequent resolutions and consistently relied by the states. Thus, GA resolutions can have normative value insofar as they demonstrate the development of an opinio juris. ठीक है, opinio juris क्या होता है आप मुझे कमेंट में लिखेंगे. कमेंट में लिखिए व्हाट इज़ ओपिनियन ज्यूरिस, राइट. नॉर्मेटिव वैल्यू होती है, इसका हमें ध्यान रखना है. फैसिलिटेशन करते हैं इन रिस्पेक्ट टू ट्रीटी मेकिंग. एग्जाम्पल UNFCCC, ये CC नहीं है, CCC है. अनक्लॉज, आउटर स्पेस ट्रीटी, जेनोसाइड कन्वेंशन. मैंने ये सारी आपको पढ़ा दी ऑलरेडी. मतलब बेसिक फैक्ट्स और क्या क्या चीज़ें इनके अंदर लिखी गई हैं, किस चीज़ के लिए लाई गई थी, वो मैंने आपको बता दिया है. कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करी है. सम रेजोल्यूशंस ऑफ GA हैव आल्सो बीन एक्सेप्टेड एज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. फॉर एग्जांपल UDHR रेजोल्यूशंस अगेंस्ट टॉर्चर एट्सेट्रा. वेरी सरल भाषा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैसे हुई है, हमें ये देखना है. बाय एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल लॉ कमीशन, by adopting treaties drafted by ILC, थर्ड कमेटी एंड द 6th कमेटी ऑफ GA. तो GA के अंदर ना बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं. ठीक है, GA1, GA2, GA3. मेजर है GA लीगल, डाइसेक एंड वन इज़ सोकम एज वेल, GA सोकम. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करती हैं. आई थिंक इनके जो रेजोल्यूशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं. दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. देखिए, आपको एक काम करना है कि आपको आर्टिकल्स याद करने हैं. ठीक है, वो याद करना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आपको नंबर चाहिए तो. आर्टिकल 7 हो गया, जैसे 10 हो गया, राइट. 17 हो गया कि बजटरी फंक्शन क्या क्या है UN का. रिकमेंडरी फंक्शन की इतनी आप अगर आप याद ना भी रखें तो ठीक है, लेकिन बजटरी फंक्शन क्या क्या, इट टू कंसिडर एंड अप्रूव UN बजट एंड एस्टैब्लिश फाइनेंशियल असेसमेंट. मतलब फाइनेंशियल असेसमेंट सिर्फ GA कर सकता है, इसका हमें ध्यान रखना. रिकमेंडेटरी फंक्शन भी है टू इनिशिएट स्टडीज़ एंड मेक रिकमेंडेशंस इंटर आलिया फॉर एनकरेजिंग प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स कोडिफिकेशन. देखिए, कोडिफिकेशन में भी अगर क्वेश्चन आएगा ना तो हम आर्टिकल 13 का कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ठीक है. सुपरवाइजरी फंक्शन भी है, सुपरवाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर ऑर्गन्स. ठीक है, रिव्यू करता है, सेक्रेटरी जनरल सबमिट करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट GA को एज वेल. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन है ओनली बॉडी दैट कैन अलाउ अमेंडमेंट टू द UN चार्टर. आर्टिकल 108, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 चाहिए होती है, राइट. इंक्लूडिंग वोट्स ऑफ ऑल परमानेंट मेंबर्स इज़ एसेंशियल टू अप्रूव एंड रेटिफाई एन अमेंडमेंट. इन जनरल GA डज नॉट टेक अप मैटर्स बीइंग कंसिडर्ड बाय UNSC, जो मैंने आर्टिकल 12 में आपको बताया था कि लिखा गया है. ऑल्दो इन प्रैक्टिस द GA कैन समटाइम्स डील इन पैरेलल विद द सेम मैटर्स. मतलब पैरेलली कभी कभी अलाउ हो सकता है. देखिए, हर बात की बात ये ख़त्म होती है कि हर चीज़ के एक्सेप्शंस हैं. ठीक है. वहाँ जीतू भैया ने, इफ किसी ने कोटा फैक्ट्री देखी है तो उन्होंने बताया कि सिर्फ केमिस्ट्री में है, नहीं,
UNGA में भी एक्सेप्शंस है, UNSC में भी एक्सेप्शंस है, इंटरनेशनल लॉ में भी एक्सेप्शंस है. इंटरनेशनल लॉ चल ही इसलिए रहा है क्योंकि इतने सारे एक्सेप्शंस क्रिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट. देन there is the Israeli wall case as well. Under Article 24, the UNSC has the primary but not the exclusive competence with regard to maintenance and of international peace and security. The deliberation by the GA in parallel with the UNSC over Russian invasion of Ukraine. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है. अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल लिखने हैं तो ये वाला ज़रूर लिख दीजिएगा. ठीक है, जो रशिया की इन्वेजन है. करंट अफेयर ज़रूर पढ़िएगा. अगर आपको यूएन के बारे में क्वेश्चन क्या आने वाला है ना, वो आपको करंट अफेयर से समझ आ जाएगा. करंट अफेयर्स, ठीक है. देन रेजोल्यूशन 377 AKA Uniting for Peace Resolution. If UNSC fails to exercise its primary responsibility for maintaining international peace and security, the GA can take up matter itself. जो मैंने पहले बताया था. ठीक है, इजरायली वॉल का एडवाइजरी ओपिनियन यही था. Based on this resolution, GA may assert partial competence to replace SC in certain situations threatening international peace where the SC fails to take action. ठीक है. Then we have reforms under the General Assembly. There are certain, yes, increasing the power vis-a-vis the UNSC, improving quality of debate within the body. अंदर ही अंदर भी जो इंटरनल डिबेट्स होती हैं उनको भी हमें बेहतर करना है. रिसेंट रिफॉर्म्स क्या कहते हैं, 2005 का जो वर्ल्ड समिट हुआ था, द मीडिएशन डिवीजन ऑफ UNGA वॉज एस्टैब्लिश. ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें ICJ में जाएंगी ना तो बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा. बट स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट UNGA नेवर सॉर्टेड आउट इट्स प्रॉपर रोल. इट currently functions as jack of all trades without proper deliberation or genuine discussions, which are its primary functions. ये आर्ग्यूमेंट है लोगों का बस. देखिए, अगर आपको लिखना हो क्रिटिसिज्म में, अगर प्रश्न आ गया हो तो ये आप लिख सकते हैं. देन वी कम टू द सिक्योरिटी काउंसिल. Only UN body with the authority to issue binding resolutions is only the Security Council. ठीक है, आर्टिकल 24 में ये लिखा गया है. UNSC's primary responsibility is to maintain peace and security. आर्टिकल 25 कहता है कि it makes its resolutions binding on all member UN states. ठीक है, बाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर ये रेजोल्यूशन पास हुआ और आपने लिखा गया है, लिखित में है रेजोल्यूशन के, और आपने उसके सिग्नेटरी में भी हैं, सिग्नेटरी अगर आप हैं तो क्या पता आप पे बाइंडिंग ना हो, डिपेंड करता है. लेकिन अगर आपने उस रेजोल्यूशन को पूरा अग्री किया है, अगर इवेंचुअली इंटरनेशनल लॉ का एक के अंतर्गत किसी भी SC का रेजोल्यूशन पास हुआ है तो वो बाइंडिंग होगा. ये आर्टिकल 25 मैंडेट करता है. देन वी हैव द पावर एंड फंक्शंस. मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी चैप्टर 6 में लिखा गया है, जिसमें पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की भी बात करी गई है. इसकी मैं अलग क्लास भी लूँगा. द SC can call upon the parties to settle their dispute by pacific means. Further, it can also recommend appropriate measure if its dispute is likely to endanger international peace and security. Right, enforcement के भी कुछ measures हैं. The SC can recommend sanctions under Article 41, even authorize corrective use of force under Article 42 to restore international peace and security. These measures are binding on all UN members. ठीक है, सब binding होते हैं. ठीक है, admission of members. SC can recommend the admission of states to the UN. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए. Recommendations require affirmation of 9 members, including the P5 members. P5 मतलब परमानेंट जो 5 members हैं. ठीक है, जिसमें चाइना आता है. P5 में क्या क्या आता है? चाइना, फ्रांस आता है ही नहीं आता है, US से आता है, और कौन आता है आप मुझे कमेंट में बताइए. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पता हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के अलावा ये जनरल स्टडीज़ का भी पार्ट है. ठीक है, अब मुझे आप 2 कंट्रीज़ बताएंगे. कमेंट पे लिखिएगा ज़रूर अगर आप क्लास देख रहे हैं तो. अगर अभी तक नहीं देखी है, अगर ये चैनल इतना फेमस अभी तक हुआ नहीं है कि हम लोगों तक ज़्यादा पहुँच पाएँ, लेकिन फिर भी मेरी आशा है अगर कोई एक भी देख रहा है तो प्लीज़ सर्च करें और मेहनत करें. देन वी हैव expulsion of members. It is recommended by SC to the GA. Regulation of disarmament as well is under this. Under Article 26, formulating plans for the establishment of a system for regulation of armaments. Appointment of UN Secretary General appointed by UNGA on UNSC recommendation.
right? Appointment of ICJ judges by simple majority of UNSC and UNGA both. It lays down conditions of ICJ jurisdiction to be open to non-member states as well. ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा, ये रट नहीं है आपको, कुछ कुछ तो आपको खुद ही बना के लिख देंगे. ठीक है, वीटो पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, प्रोसीजरल मैटर्स जो होते हैं दैट ओनली रिक्वायर द मेजॉरिटी ऑफ 9 of the 15, whereas substantive matters जो होते हैं it requires 9 out of 15 including the P5 as well. It is very important. Thus P5 members exercise the veto by casting a negative vote, but an abstention is not counted as a veto despite the text of 27(3) requiring concurrence of P5. ठीक है, at the end law is always made on certain concept, but with change in time the interpretations of law changes. जो भी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कंकरेंस का मतलब क्या हुआ. ठीक है, कोई कंकरेंस को सिर्फ हामी में मिलेगा, कंकरेंस ये भी तो हो सकती है कि ना हाँ कह रहा, ना इंसान ना कह रहा है. ठीक है, तो इस पर बहुत डिबेट हुई है. ठीक है, और इसकी क्लैरिफिकेशन अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्लियरली रखी नहीं गई है. देन इन रियलिटी द वीटो इज़ वेरी रेयरली यूज्ड, स्पेशली in its true post USSR phase of UNSC as well. Reforms क्या कहते हैं वीटो यूज़ के? Abuse of veto criticized as reason for inaction in the Israel-Palestine matter, Syrian crisis, Ukrainian crisis, and हर एक मतलब at the end कोई स्टेट किसी को सपोर्ट करता है आइडियोलॉजिकली, अब वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. However, P5 can oppose any amendment in this regard. Suggestions क्या क्या हैं? France suggested creating code of conduct for exercising veto power. P5 members decided to voluntarily suspend veto exercise in situations of mass atrocities as well, unless it affects the national interest. Of course, देखिए फिर से exception आ गया. Then increased presence of middle powers might not be the best solution, and eventually they might end up in more use of veto powers by different states. ठीक है. Then we have the need for enlargement of UNSC. क्यों होनी चाहिए enlargement? ठीक है. Yes. Issues with current structuring. देख, रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं, वो साउथ अमेरिका की नहीं है, अफ्रीका की नहीं है रिप्रेजेंटेशन, ओशियानिया का नहीं है, पैरालाइज्ड फंक्शनिंग है. सीरियन क्राइसिस और यूक्रेन क्राइसिस में हमने देखी जो मैंडेट बहुत ही कंफ्यूज्ड है, वीटो की पावर कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते. ठीक है, आउटडेटेड स्ट्रक्चर है पूरा. प्रॉब्लम क्या है? पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों नहीं है? हम वही टैरिफिकेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, राइट. एक्सपैंडिंग विल सेट अ प्रेसिडेंट वेयर बाय इन फ्यूचर मोर पावर्स लाइक नाइजीरिया एंड वियतनाम वुड डिमांड अ सीट एट UNSC. प्रपोजल्स क्या क्या है? G4 का प्रपोजल है टू ऐड मिडल पावर्स इन इंडिया, Germany and Japan and Brazil to the UNSC as permanent members. Coffee Club for uniting consensus group proposal. Prefer the enlargement of only the non-permanent seats. ठीक है, सेमी परमानेंट प्रपोजल भी है अपने पास. It suggests the creation of a new category of membership for a period of 4 years. US की रिकमेंडेशन क्या है हम ये भी देख लेते हैं. A class of rotating seats based on merit criteria for longer terms and allowing renewals. ठीक है, ये 4 प्रपोजल्स हैं. सेमी परमानेंट क्या होना चाहिए? US क्या कहता है? रोटेटिंग सीट्स होनी चाहिए. कॉफ़ी क्लब बन जाता है इवेंचुअली, क्योंकि परमानेंट सीट्स सिर्फ 5 चाहिए, वो कॉफ़ी क्लब ही बन गया इवेंचुअली. G4 का प्रपोजल है इंडिया, जर्मनी एंड जापान एंड ब्राज़ील टू UNSC परमानेंट मेंबर्स. बट बहुत ही फार हिडन कॉन्सेप्ट है, बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी इन चीज़ों से. की एरियाज़ क्या क्या होने चाहिए? मेंबरशिप का कैटेगरी, वीटो पावर्स की एक्सरसाइज किस तरीके से होनी चाहिए, रीजनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो मैंने आपको बताया, साइज़ ऑफ एनलार्ज मतलब काउंसिल अभी सिर्फ 15 की है तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए. GA और SC की रिलेशनशिप और लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो हैं दोनों के बीच, उसको हमें चेंज करना चाहिए. तो ये 5 रिफॉर्म्स हैं. देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,